آپ سب کی سلامت ہو۔ میں رہا کرم ایک بار پھر آپ سب کے سامنے حاضر ہوں کلام حق چینل۔ آج ہم بات کریں گے بائبل کس طرح کی۔ آپ نے میری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے اور لاسٹ میں ویڈیو کے بعد میں آپ سے کوسچن پوچھوں گی، اس کوسچن کا آنسر مجھے اپنے کمنٹس کے ساتھ دینا ہے اور آپ نے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب۔ آج ہم دیکھیں گے کہ بائبل کس طرح لکھی۔ آج ہم بائبل مقدس کی تاریخ اور پس منظر دیکھیں گے، مسیحی نظریہ، الہام، زبان اور مصنفین کے حوالے سے۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ بائبل خدا کا کلام ہے، لیکن آپ نے کبھی غور کیا یہ کتاب کیسے لکھی گئی؟ آج ہم اس سب پر غور کریں گے۔ بائبل خدا کا کلام ہے۔ فرسٹ پوائنٹ، the Bible is the word of God۔ پترس کا دوسرا عام خط، اس کا پہلا باب، اس کی 21 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ربوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریر کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے ہیں۔ اس آیت کے مطابق کیا بائبل کو آدمی نے اپنی مرضی سے لکھا؟ جی نہیں۔ اور کیا بائبل کو جبرائیل فرشتے کے ذریعے پہنچایا گیا؟ جی نہیں، بلکہ بائبل کو خدا کی طرف سے انسانوں نے لکھا۔ بائبل کو آدمی نے روح القدس کی تحریر سے لکھا۔ تمام نبی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں وہ خدا کا کلام۔ فار ایگزامپل، یوئیل اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، خدا کا کلام جو یوئیل نبی پر نازل ہوا۔ حجی اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، حجی نبی کی مارفت خدا کا کلام پہنچا۔ نبیوں کے صحیفے اور بائبل کی ساری کتابیں خدا کا سچا کلام ہے۔ پاک نوشتے خدا کا کلام ہے۔ الہامی کتابیں انسانوں نے لکھی، لیکن یہ روح القدس کی تحریر سے لکھی گئی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بائبل الہامی کتاب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے روح القدس کی تحریر لکھنے والوں کے ذہنوں میں خیالات ڈالے تاکہ وہ لکھیں۔ مصنفین عام انسان تھے، لیکن روح القدس کی تحریر سے انہوں نے خدا کا کلام لکھا۔ ہم بائبل کو خدا کا کلام کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں صرف خدا کی باتیں ہیں، یا یہ آسمان پر لکھی گئی اور جبرائیل فرشتے کے ذریعے نازل ہوئی؟ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ خدا نے لکھنے والوں کے ذہنوں میں وہ تمام خیالات ڈالے جو انہوں نے لکھے۔ ہم بائبل مقدس کو الہامی کتاب کہتے ہیں۔ لوگوں نے اپنی عقل استعمال کر کے اپنے الفاظ میں یہ خیالات پیش کیے، کیونکہ خیالات خدا کی طرف سے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بائبل خدا کے الہام سے لکھی گئی۔ پولس رسول یوں بیان کرتا ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ خدا کا کلام ہم کو کس کس کام کے لیے فائدہ مند کہتے ہیں؟ تعلیم، الزام، اصلاح، راست بازی میں تربیت حاصل کرنے کے لیے۔ بس انسان نے اپنے الفاظ میں خدا کے دیے گئے خیالات لکھے۔ بائبل میں صرف ایک بک نہیں، بائبل میں ٹوٹل 66 بکس ہیں، اور یہ ڈفرنٹ لوگوں نے رائٹ کی، جو کم از کم تقریباً 40 لوگ تھے جنہوں نے یہ لکھی۔ ان میں سے بعض بڑے بڑے بادشاہ تھے، جیسے کہ داؤد اور سلیمان۔ ان میں سے اکثر عام آدمی تھے۔ فار ایگزامپل، پطرس ایک ماہی گیر تھا، آموس ایک چرواہا تھا اور متی مصول لینے والا۔ انہوں نے مذہبی کتابیں لکھنے کے لیے کوئی خاص تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ جب خدا نے یرمیہ کو اپنا پیغام سنانے کے لیے کہا تو اس نے جواب میں کہا، ہائے خداوند خدا، دیکھ میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں تو بچہ ہوں۔ اس کے لیے ہم دیکھیں گے خداوند نے کیا کہا۔ یرمیہ کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، لیکن خداوند نے پھر بھی کہا، یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں، کیونکہ جس کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا، اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کہے گا۔ دیکھ، میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا ہے۔ خدا نے یرمیہ کے منہ میں اپنا کلام ڈالا۔
किताब मुकद्दस की 66 बुक्स 2 हिस्सों में डिवाइड होती हैं। पुराना अहदनामा जिसमें 39 बुक्स हैं और नए अहदनामे में 27 बुक्स हैं। बाइबल को लिखने वालों ने पैगाम खुदा से हासिल किया, लेकिन उन्होंने इस पैगाम को इस जुबान में बयान किया जो इस जमाने में इस इलाके के लोग समझते थे। उन्होंने आम लोगों की जुबान इस्तेमाल की। बाइबल मुकद्दस और कुरान शरीफ में यही एक बड़ा फर्क है। हमारे मुस्लिम दोस्तों का ईमान ये है कि अरबी जुबान आसमानी जुबान है और ये कुरान शरीफ आसमान पर लिखा गया और फिर अरबी जुबान में नाजिल किया गया, जबकि मसीहियों का ईमान ये है कि खुदा ने एक आम जुबान में कलाम किया ताकि लोग इसे समझ सकें। ओल्ड टेस्टमेंट लैंग्वेज बाइबल का पुराना अहदनामा अब्रानी जुबान में लिखा गया जो यहूदियों की लैंग्वेज थी। शुरू में पुराना अहदनामा यहूदी कौम की मुकद्दस किताब थी। अब्रानी एक मशरकी लैंग्वेज है जो अरबी जबान से मिलती जुलती है। इसकी वजह यह है कि अरब और यहूदी दोनों इब्राहिम की नस्ल से हैं। अरबी जबान का उर्दू जबान पर बहुत गहरा असर है, इसलिए उर्दू के बहुत से अल्फाज अब्रानी जुबान से मिलते जुलते हैं। अब्रानी लैंग्वेज देखने में बहुत मुश्किल लगती है, असल में ये इतनी मुश्किल नहीं है। उर्दू की तरह अब्रानी जुबान दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ लिखी जाती है और इसमें ज्यादातर वर्ड जो हैं वो हर्फ जो हैं उर्दू के हरूफ से मिलते जुलते हैं, मसलन अलिफ, सीन, मीम और नून वगैरह। सो उर्दू, अरबी, अब्रानी एक दूसरे से काफी हद तक मिलती जुलती हैं। पुराने अहदनामे के उर्दू तर्जुमे में कई जगहों पर बहुत मुश्किल वर्ड यूज किए गए, जिसकी वजह से इनको लोगों के लिए समझने में मुश्किल पेश आ रही थी। पुराना अहदनामा मशरिकी लैंग्वेज में मशरिक के लोगों के लिए लिखा गया। पुराने अहदनामे के रस्म व रवाज को ज्यादा आसानी से पाकिस्तानी लोग समझ सकते हैं। नए अहदनामे की जुबान यसू पैदाइशी यहूदी था, इसने अब्रानी लैंग्वेज सीखी। इसकी खिदमत के दौर में एक और जुबान दुनिया में बहुत ज्यादा यूज हो रही थी, वो यूनानी लैंग्वेज थी। जिस तरह आजकल दुनिया में ज्यादा बोली और समझी जाने वाली जुबान है वो इंग्लिश लैंग्वेज है। हर एक से कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज ज्यादा यूज होती है। इसी तरह यीशु के दौर में जो जुबान सारी दुनिया में समझी जाती थी और बोली जाती थी वो यूनानी लैंग्वेज थी। इसलिए यीशु मसीह के शागिर्द फलस्तीन से बाहर मसीह की खुशखबरी सुनाने के लिए लगे तो उन्होंने यूनानी लैंग्वेज यूज की। अब देखें कि यीशु मसीह ने अपने पैगाम के लिए जो सारी दुनिया के लिए था कौन सी लैंग्वेज ज्यादा यूज की और बेहतर समझा? यूनानी। इसी वजह से नया अहदनामा जो मसीह का पैगाम है यूनानी जुबान में लिखा गया। यह जुबान सारी दुनिया में, सारी रोमी दुनिया में समझी जाती थी, इसलिए मसीह की खुशखबरी बहुत जल्द फैल गई। खुदा ने पुराने अहदनामे को एक मशरकी लैंग्वेज यानी अब्रानी और नए अहदनामे को एक यूनिवर्सल लैंग्वेज यानी यूनानी में लिखवाया। अब आप देखें कि बाइबल में टोटल कितनी बुक्स हैं? 66। और बाइबल को लिखने में कितने लोगों ने हिस्सा लिया? 40। और बाइबल के 2 बड़े हिस्से हैं। पहला हिस्सा कौन सा है? पुराना अहदनामा। पहला हिस्सा किस जुबान में लिखा गया? अब्रानी। और ये जुबान किस कौम की थी? यहूदी। और दूसरा हिस्सा कौन सा है? नया अहदनामा। ये कौन सी जुबान थी? यूनानी। क्योंकि इस जमाने में तमाम दुनिया में ये जुबान समझी जाती थी, इसलिए मसीह के पैगाम को फैलाने के लिए बेहतर थी। अब हम देखेंगे कि बाइबल किस तरह लिखी गई। जिस जमाने में बाइबल लिखी गई इस दौर में प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता था, हर एक को हाथ से बाइबल को राइट करना पड़ता था। काफी चमड़े के बड़े बड़े तूरमारों पर पुराने अहदनामे की नकलें तैयार किया करते थे। जब कोई तूरमार में से कोई हवाला पढ़ना होता था तो उस हवाले को निकालने के लिए पूरा तूरमार खोलना पड़ता था।
अब आप देखें पुराना अहदनामा किस चीज पर लिखा जाता था? चमड़े के तूड़मारों पर। और नया अहदनामा ज्यादातर पपायरस के सफ़ों पर लिखा गया। पपायरस पुराने जमाने का एक तरह का पेपर था जो पपायरस के पौधे से तैयार किया जाता था। ये पौधा मिस्र में पैदा होता था। इस पौधे को यूनानी जुबान में बबलूस कहते हैं। इसी से लफ्ज बाइबल निकला है। लोग पपायरस की शाखों को लंबे लंबे रुख में बारीक बारीक हिस्सों में चीर लेते थे, फिर इसको पानी में भिगो देते थे और फिर इसको कूट कूट कर बारीक कर लेते थे, फिर इसको धूप में खुश्क कर लेते थे और बाद में इसे पेपर के तौर पर इस्तेमाल करते थे। नया अहदनामा लिखने के लिए कौन सी चीज इस्तेमाल की गई? पपायरस से तैयार करदा पेपर। नए अहदनामे की किताबें पपायरस पर तैयार की गई थी। ये किताबें हाथ से लिखी गई थी। हाथ से लिखी हुई इन किताबों को नुस्खे कहा जाता था। हमारे पास यूनानी जबान में नए अहदनामे के तकरीबन 5000 नुस्खे मौजूद हैं। इनमें सबसे पुराना नुस्खा यूहन्ना की अंजील का हिस्सा है जो मिस्र में दरियाफ्त हुआ। नया अहदनामा किस जुबान में लिखा गया? यूनानी। क्या खुदा ने अपना कलाम किसी आसमानी जुबान में हमें दिया था या आम लोगों की जुबान में? आम लोगों की जुबान में, क्योंकि खुदा चाहता था कि सब लोग इस कलाम को समझें। इसलिए इसने अपना पैगाम आम लोगों की जुबान में पहुंचाया। इसलिए बहुत जरूरी है कि इसका तर्जुमा दुनिया की हर एक जुबान में किया जाए ताकि दुनिया की तमाम कौमें इसको अपनी अपनी जुबान में पढ़ सकें। अब तक बाइबल के कुछ हिस्सों का तर्जुमा कम से कम 2000 जुबानों में हो चुका है। अब दुनिया के अक्सर मुल्कों के लोग खुदा के कलाम को अपनी जुबान में पढ़ सकते हैं। जनूबी अमेरिका के एक कबीले के लोगों ने जब बाइबल के तर्जुमे को पढ़ा अपनी जुबान में और ये जाना कि खुदा इनकी अपनी जुबान में इनसे गुफ्तगू कर रहा है, तो वो जोश से भर गए। उनकी खुशी की कोई इंतहा न रही। ये क्यों जरूरी है कि बाइबल का तर्जुमा दुनिया की हर एक जुबान में किया जाए ताकि दुनिया की तमाम कौमें अपनी अपनी जुबान में खुदा के कलाम को समझ सकें। अब ये कीमती अमानत हमारे हाथ में है। खुदावन ने इसे हमारे सुपुर्द किया है। ये हमारी अपनी जुबान में मौजूद है। शुक्र है कि हमारी आंखें भी हैं, हम इस काबिल भी हैं कि इसको पढ़ सकें। सो अजीजों, खूबसूरत और कीमती बख्शिश के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। दुआ करें कि हम ना सिर्फ इस कलाम को समझने के काबिल हों बल्कि इसमें दूसरों को भी शरीक करने के काबिल बने। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन। आज आपके लिए सवाल है, बाइबल को तकरीबन कितने लोगों ने लिखा? बाइबल को तकरीबन कितने लोगों ने लिखा?